Assalamu alaikum, beta. In this video lecture, I'll be delivering a very important topic of the abdomen, particularly in the intestine, in the general surgery series of lectures, and that is rectal prolapse. Right? I'll be telling you all the details of the rectal prolapse, and you are going to do the mastery of this particular thing. What happens is, beta, if, as you know from the anatomy, there is a rectum and distal to the rectum there is anus. If the mucosa of the rectum detaches from the rectum and hangs down out of the anus, it is called mucosal prolapse or partial thickness prolapse because it contains only mucosa and sometimes submucosa as well. Right? And if all the layers of rectum prolapse, hangs out of the anus into the environment, is called full thickness rectal prolapse, right? I hope this is not difficult. If only mucosa submucosa are hanging down out of the anus, it is partial thickness prolapse. But if all the three layers including mucosa, submucosa and the muscles, if they are hanging out of the anus, it is called what? Full thickness prolapse, right? I'll be talking first about the mucosal prolapse, that is the partial thickness prolapse first, and then I'll be taking you to the details of the full thickness prolapse. Firstly, the mucosal prolapse, let's talk about it. When this prolapse occurs, when it hangs outside the anus, 1 से 4 सेंटीमीटर का होता है ये, ठीक है. If I take you back on this anatomy slide, you will see if this is the anus, यहाँ से ये रेक्टम नीचे लटकता है, हैंग करता है बाहर की तरफ. मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ बेटा? प्रोलैप्स. प्रोलैप्स की कौन सी टाइप डिस्कस कर रहा हूँ? पार्शियल थिकनेस प्रोलैप्स, मिकोजल प्रोलैप्स. अभी फुल थिकनेस प्रोलैप्स को भूल जाओ. आई एम ऑन पार्शियल थिकनेस प्रोलैप्स, दैट इज़ द मिकोजल प्रोलैप्स. अगर मिकोजल प्रोलैप्स होता है बेटा तो इसकी ये प्रोलैप्स की लेंथ कितनी होती है? 1 से 4 या 1 से 3 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है. ये कितना बाहर हैंग करता है एनस से? 1 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, या 1 to 4 centimeter. Now what are the causes of the, what are the risk factors, what are the risk factors of the mucosal prolapse? Why? There are different risk factors in infants, different in children and different in adults. In infants, why this mucosa submucosa hangs down, prolapse out of the anus? Decreased resting anal tone. That's a very interesting thing. असल में क्या होता है बेटा, रेस्ट पे एनस जो है टॉनिकली कंट्रैक्टेड होता है. रेस्ट पे एनस इज टॉनिकली कंट्रैक्टेड, बट इफ द रेस्टिंग टोन ऑफ द एनस बिकम्स डिक्रीज्ड, what will happen? The mucosa will slips down out of the anus. तो टोन जो है मेंटेन रहना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए. नंबर 2 थिंग इज some problem with the anatomy. Underdeveloped sacral curve. If the curve is not developed well, if the sacral curve is not developed well, some problem with the anatomy. So the rectum mucosa will not retain inside, it will hang out of the anus in infants. I hope you are clear. What about the children? Repeated attacks of diarrhea can damage, lax the wall. असल में क्या होता है बेटा, जब डायरिया होता है तो रिपीटेडली वो बड़ा फोर्सफुल होता है डायरिया. इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे है जैसे मेलरी वीज सिंड्रोम होता है. यू रिमेंबर रिपीटेड फोर्सफुल डायरिया, रिपीटेड फोर्सफुल वॉमिटिंग क्या करती है? इसोफेगस को कैसे उसके अंदर टीयर्स क्रिएट करती है. इसी तरीके से रिपीटेड फोर्सफुल डायरिया कैन डैमेज द एनल स्फिंक्टर, can damage the anal sphincter, and if the anal sphincter is damaged, what will happen? If the anal sphincter is damaged, anal tone will be lost. Sphincter डैमेज होगा तो आपकी मिकोजा प्रोलैप्स कर जाएगी नीचे, ठीक है.
repeated attacks of diarrhea. What else? Sudden weight loss, some problems with the anatomy. That's it. What about the causes in adults or the risk factors in the adults? In male, the cause of the rectal prolapse, especially the partial thickness mucosal prolapse, is the urethral obstruction. How the hell urethral obstruction can cause mucosal prolapse? Tell me. When there is the urethral obstruction and the urine accumulates at the back, you try to push your hard to let the urine pass out of it, and while you are doing some straining activity like trying to pass the urine while your urethra is obstructed, the intra-abdominal pressure rises, and due to increased intra-abdominal pressure, increased intrarectal pressure, the mucosa hangs out of it. That's in case of male. In case of females, टॉर्न पेरिनियम, स्पेशली टॉर्न पेरिनियल बॉडी, अगर पेरिनियम फटा हुआ है, अब ये टॉर्नियम कह रहा हूँ सॉरी, पेरिनियम के टॉर्न होने की क्या वजह हो सकती है? ट्रॉमा, राइट? सेक्सुअल इंटरकोर्स, रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, रिपीटेड वजाइनल बर्थ. So if the perineum is torn, that diaphragm will not be having some ability to hold your rectum back at the normal position. So rectum will slip out of it, right? एजिंग में तो वैसे स्फिंक्टर जो होता है एनस का, इसकी टॉनिसिटी लॉस हो जाती है और आपका स्फिंक्टर लैक्स हो जाता है और इस म्यूकोसा ऊपर से प्रोलैप्स करके नीचे आ जाती है. थर्ड डिग्री हेमोरॉइड्स में भी प्रोलैप्स देखने को मिलता है. सो आई होप यू पीपल आर क्लियर विद द रिस्क फैक्टर्स. इतना स्लो गया हूँ बेटा मैं ताकि समझ में भी आए और याद भी हो जाए. रिपीटेड डायरिया किस में करवाती है? बच्चों में. और इसके अलावा डिक्रीज रेस्टिंग एनल टोन इन्फेंट्स में. मेल में क्या कॉमन कॉज है? यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन. फीमेल में क्या है? टॉर्न पेरिनियम. एजिंग में क्या होता है ऐसा? एनल सफिंक्टर की जो टॉनिसिटी है वो लॉस हो जाती है. दैट्स इट. Now what about the treatment of this partial thickness prolapse, mucosal prolapse? What do you say? The treatment option is a little bit different in case of infant children and different in adults. So in infants and children it is a little bit different, and in adults it's one of the options is same. The thing is that बच्चों में क्या कर सकते हैं? डिजिटल रिपोजिशनिंग, फिंगर से उसको वापस प्रोलैप्स को अंदर कर दें. नंबर 2 थिंग इज द सब म्यूकोजल इंजेक्शन ऑफ 5% फिनॉल मिक्सड इन द आलमंड ऑयल. यू मस्ट बी थिंकिंग कि एक चीज़ एनस से नीचे लटक रही है. इफ दिस इज़ योर एनस, अपॉलॉजीज आई एम यूजिंग लेमन टर्म्स, बट मुझे अच्छे से पता है कि लॉन्ग टर्म में ले जाने के लिए क्या जो है आपको बताना है. सो दिस इज द रेक्टम हैंगिंग आउट ऑफ द एनस. या दिस इज अ सुपर इंटरेस्टिंग. व्हाट इज दिस? पार्शियल थिकनेस प्रोलैप्स. इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 से 4 सेंटीमीटर. प्रोलैप्स, राइट? या तो इसको डिजिटली फिंगर की मदद से अंदर करो, या इसमें आप इंजेक्शन लगाओ. किसका? 5% फिनॉल इन द आलमंड ऑयल. वो इंजेक्शन देने से क्या होगा? वो इंजेक्शन देने से ये होगा कि इस प्रोलैप्स्ड म्यूकोसा के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी. अच्छा, और जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगी तो ये टिश्यू क्या करेगा? उस इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने की कोशिश करेगा. और जैसे इन्फ्लामेशन सबसाइड होगी तो आपको पता है हीलिंग के नतीजे में जब एक टिश्यू में डैमेज होता है और फिर जब वो टिश्यू हील करता है तो उसमें फाइब्रोसिस होती है, स्कारिंग होती है. और जिस जगह पे फाइब्रोसिस होती है और स्कारिंग होती है वो जगह सुकड़ जाती है. लिवर सिरोसिस याद है? उसमें फाइब्रोसिस हो रही थी तो लिवर का साइज श्रिंक हो रहा था. अब इसमें क्या होगा? आपने फिनॉल दिया. फिनॉल क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा. फिर ये टिश्यू अपने आप को हील करेगा तो इसमें फाइब्रोसिस और स्कारिंग होगी. इस फाइब्रोसिस स्कारिंग की वजह से ये टिश्यू, अगर ये इतना प्रोलैप्स था तो ये सुकड़ के वापस चला जाएगा. This is the beauty. Right after that, beta, we have this procedure that is suturing of the rectum to sacrum. बच्चों के अंदर
एक तो डिजिटल रिपोजिशनिंग कर ली, दूसरा मैंने फिनॉल का मैकेनिज्म बताया 5% फिनॉल इन आलमंड ऑयल, थर्ड इज सुचरिंग ऑफ द रेक्टम विद द सेक्रम। फिर तो इसके नीचे आने का कोई चांस ही नहीं है, ऊपर ही बना हुआ रहेगा। व्हाट अबाउट द एडल्ट्स? एडल्ट्स में भी सेम चीज़ कर सकते हो, इंजेक्शन ऑफ 5% फिनॉल इन द आलमंड ऑयल, राइट। इंजेक्शन ऑफ द 5% फिनॉल इन द आलमंड ऑयल, ये एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा कोई और तरीक़ेकार हैं एडल्ट्स के अंदर? बिल्कुल हैं। रबर बैंड, टाइट रबर बैंड, टाइट रबर बैंड अराउंड दिस प्रोलैप्स्ड एरिया, इट विल कीप द रेक्टम रिट्रैक्टेड, और रबर बैंड टाइट होगा तो वो उसको नीचे लटकने नहीं देगा दोबारा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? दो मेथड्स हैं, लेट मी टेल यू बेटा। जो बेटा ये मिकोज़ा नीचे प्रोलैप्स कर रही है, और जो हम पढ़ रहे हैं मिकोज़ल प्रोलैप्स, पार्शियल थिकनेस प्रोलैप्स, तो उसमें सिर्फ मिकोज़ा ये नीचे आती है। उसमें इसको आप देखोगे तो इसमें मसल सब मिकोज़ा, मतलब सब मिकोज़ा हो सकती है, लेकिन मसल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब डिपेंड करता है कि ये जो मिकोज़ा नीचे प्रोलैप्स हुई है, ये यूनिलैटरल है या सर्कमफ्रेंशियल है। यानी कि कहने का मकसद ये है बेटा कि ये जो मिकोज़ा नीचे प्रोलैप्स हुई है, ये इस तरीके से, अगर आप एनस को नीचे से देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसका मुंह होगा। तो प्रोलैप्स जो हुआ है मिकोज़ा का, वो सर्कमफ्रेंशियल पूरी मिकोज़ा नीचे आई है, या फिर किसी पर्टिकुलर वॉल की यूनिलैटरल साइड की, इस साइड की या इस साइड की नीचे प्रोलैप्स हुई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे? तो अगर बेटा पूरा सर्कमफ्रेंशियल मिकोज़ा जो है नीचे प्रोलैप्स हुई है, नीचे प्रोलैप्स हुई है, पूरी सर्कमफ्रेंशियल मिकोज़ा नीचे आई है, सो दिस इज़ व्हाट वी से सर्कमफ्रेंशियल। या ये हो सकता है कि पूरी सर्कमफ्रेंशियल मिकोज़ा नीचे ना आए, बल्कि एक सिर्फ यूनिलैटरल साइड जो है वो नीचे आए, सिर्फ यूनिलैटरल साइड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो अगर बेटा सर्कमफ्रेंशियल प्रोलैप्स है या फिर यूनिलैटरल प्रोलैप्स, अगर यूनिलैटरल प्रोलैप्स है तो हम क्या करते हैं? रिजेक्शन ऑफ द रिडंडेंट मिकोज़ा, जो मिकोज़ा नीचे आई है उसको हाथ से पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर सर्कमफ्रेंशियल पूरी गोलाई नीचे आई है तो उस केस में हम एंडोल्यूमिनल स्टेपलिंग करते हैं। एंडोल्यूमिनल स्टेपलिंग भी रिजेक्शन ऑफ मिकोज़ा ही है, जस्ट लाइक दिस प्रोसीजर। देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द रिडंडेंट मिकोज़ा हम मैनुअली इसको अपने हाथ से रिजेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ एंडोल्यूमिनल स्टेपलिंग इसमें स्पेशल डिवाइस होती है जो उसको स्टेपल करती है, कट करती है, ठीक है। बच्चों के अंदर क्या मेथड मौजूद थे? डिजिटल रिडक्शन कर सकते हैं, उसके अलावा इंजेक्शन ऑफ फिनॉल 5% इन द आलमंड ऑयल, उसके अलावा बेटा रबर बैंड। एडल्ट्स में क्या कर सकते हैं? इंजेक्शन 5% फिनॉल की आलमंड ऑयल में, उसके अलावा रबर बैंड अपॉलॉजीज एडल्ट्स में करते हैं। बच्चों में क्या कर रहे थे फिर? सूचरिंग ऑफ द रेक्टम विद द सेक्रम, ठीक है। तो एडल्ट्स में रबर बैंड हो गया, एडल्ट्स में 5% फिनॉल का इंजेक्शन हो गया, और एक दूसरा प्रोसीजर बताया अगर सर्कमफ्रेंशियल मिकोज़ा का प्रोलैप्स है तो फिर उस केस में एंडोल्यूमिनल स्टेपलिंग करते हैं, और अगर यूनिलैटरल पार्ट ऑफ मिकोज़ा है तो उसमें हम हाथ से रिजेक्शन करते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द मिकोज़ल प्रोलैप्स। नाउ आई विल बी टेकिंग यू टू द फुल थिकनेस प्रोलैप्स। नाउ बेटा, फुल थिकनेस प्रोलैप्स आल्सो नोन एज प्रोसीडेंशिया। Mucosa, submucosa, muscles, everything is just falling down out of the anus. Everything coming out of it. That's called procedentia. And the first wall to come out is the anterior wall. This is the rectum, right? And this is the anterior wall, this is the posterior wall, this is lateral, this is medial. आएगी पूरी थिकनेस मिकोज़ा, सब मिकोज़ा, मसल, लेकिन जो पहले जो फॉल डाउन करती है, प्रोलैप्स करती है, वो एंटीरियर वॉल है, ठीक है, इस तरीके से। द फर्स्ट वॉल टू कम आउट इज़ द एंटीरियर वॉल, एंड लेंथ यहाँ पे 1 से 3 सेंटीमीटर नहीं रहती प्रोलैप्स की, ये ज़्यादा प्रोलैप्स होता है, एक्सटेंसिव प्रोलैप्स है ये। दिस इज़ योर एनस, if this is your anus and the prolapse is big enough, right? It is about 10 to 15 centimeter, right? It's extensive, it's big. पहले कौन सी वॉल बाहर आती है? एंटीरियर वॉल, ठीक है जी, okay. Now the question is why? What are the risk factors? Also in case of the partial thickness prolapse, I told you some risk factors.
in children, in infants, in adults. So there must be some risk factors in this particular case as well, and the risk factors in this case should be very much extensive compared to the risk factors in the previous case, because this is an extensive disease, right? In the previous case only the mucosa, submucosa was falling off, and in this case entire thickness is coming off. So the risk factors must be very serious, like what? Multiple vaginal deliveries, para 7, para 8. तो उससे क्या होगा बेटा? पेल्विक फ्लोर बिल्कुल वीक हो जाएगा, लैक्सिटी हो जाएगी, स्फिंक्टर जो रेक्टल वॉल है वो नीचे प्रोलैप्स करेगी। क्रॉनिक डेफिकेशन, लॉन्ग स्टैंडिंग, 5 साल से 10 साल से डेफिकेशन है, इसीलिए बोलते हैं बूढ़े हजरात को कि अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करा लें, वरना ये हो जाएगा। ठीक है, फाइबर डाइट खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, और एक्सरसाइज करें, वज़न को कम करें, अदरवाइज़ ये आपको फेस करना पड़ेगा। ओल्ड एज, खास करके पोस्ट मेनोपॉजल खातून, ठीक है जी, इस तरीके से। एंड द फुल थिकनेस प्रोलैप्स इज एसोसिएटेड विद, खास करके फुल थिकनेस प्रोलैप्स खवातीन में देखने को मिलता है, वो भी पोस्ट मेनोपॉजल खातून के अंदर। ठीक है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द वीक पेल्विक फ्लोर। अरे भैया, पेल्विक फ्लोर वीक होगा, उसी में प्रोलैप्स होगा। जिनका पेल्विक फ्लोर टाइट है, यंग गर्ल्स, यंग मेल, 20 years 30 years of age, they have soothy, they have strongest pelvic floor. But if the pelvic floor is weak, this will hang out of it. Fecal incontinence, fecal incontinence obvious सी बात है बेटा। देखो ना, एक बात समझने की है कि ये चीज़ नीचे क्यों हैंग आउट हुई है, मुझे बताओ। और अगर हैंग आउट हुई है तो आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि जब ये चीज़ ऊपर थी और ऊपर से नीचे आई है, तो जाहिर सी बात है इसका एनस का जो स्फिंक्टर होगा उसको हाँ जी, इसको उस पर प्रेशर अप्लाई करके आई होगी, उसको सेपरेट करके आई होगी, उसकी डिस्टेंशन करवा के आई होगी। तो अब एक चीज़ ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये कॉमन सेंस है कि अगर ऊपर से प्रोलैप्स करके नीचे आई है एनस के थ्रू, तो जाहिर सी बात है एनस का जो स्फिंक्टर है उसको डिस्टॉर्ट करके आई होगी। और अगर इसका जो एनस का स्फिंक्टर है वो डिस्टॉर्टेड हो, तो क्या भला फीकल इनकॉन्टिनेंस नहीं होगी? बिल्कुल होगी। पेचुलस एनल स्फिंक्टर, but what happens is one of the causes of the prolapse is the weak anal sphincter. weak anal sphincter, अगर आपका एनल स्फिंक्टर वीक है तो क्या होता है, ये जो रेक्टल वॉल है ये नीचे प्रोलैप्स करके आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद बेटा क्या होता है, शुरू में ये एनल स्फिंक्टर सिर्फ वीक था तो ये नीचे आ गई, लेकिन जब ये प्रोलैप्स करेगा तो ये अलग इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा स्फिंक्टर के ऊपर। तो पहले आपका स्फिंक्टर सिर्फ वीक था, अब बिल्कुल पेचुलस हो गया है। पहले तो ओल्ड एज की वजह से, क्रॉनिक डेफिकेशन की वजह से या किसी और वजह से वीकनिंग थी ना, अब तो एक और वजह मिल गई इसको मजीद वीक होने की, दैट इज द स्ट्रेचिंग बाय द प्रोलैप्स, दैट इज कॉल्ड द पेचुलस स्फिंक्टर। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द फुल थिकनेस प्रोलैप्स? chronic defecation, multiple vaginal deliveries, okay, and what are the associated conditions? एनल स्फिंक्टर। देखो बेटा, एक बात समझने की है कि क्या चीज़ एसोसिएटेड हो सकती है फुल थिकनेस प्रोलैप्स के साथ, जो फुल थिकनेस प्रोलैप्स की कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। अगर फर्ज करो ये प्रोलैप्स हो रहा है, एनस से गुजर के बाहर आ रहा है, तो क्या होगा, एनल स्फिंक्टर को स्ट्रेच करेगा, वीक करेगा उसको, तो भला फीकल इनकॉन्टिनेंस नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आल्सो इफ ऑलरेडी यू हैव अ वीक स्फिंक्टर जिसकी वजह से प्रोलैप्स हुआ है, और ऊपर से प्रोलैप्स नीचे आएगा यानी कि रेक्टल वॉल नीचे आएगी, तो मजीद स्फिंक्टर को स्ट्रेच करेगी, तो आपका एनल स्फिंक्टर पहले वीक था, अब पेचुलस हो गया है। ठीक है, नाउ बेटा आई विल बी टेकिंग यू टू द मैनेजमेंट ऑफ द फुल थिकनेस प्रोलैप्स, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। द मैनेजमेंट ऑफ full thickness prolapse, Procedentia. We have 2 to 3 different methods. One is the Delorme's operation, this is the perineal approach or abdominal approach. या तो आप पेरिनियम से एंटर करो इस प्रोलैप्स को, फुल थिकनेस प्रोलैप्स को ठीक करने के लिए, या तो आप एब्डोमेन में इंसिजन देके ऊपर से जाओ। ठीक है, एब्डोमेन से जाने का फ़ायदा ये है कि रिकरेंसेस कम होते हैं, लेकिन फिर यह है कि एब्डोमिनल अप्रोच के कुछ डिसएडवांटेजेस में, जैसे कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सीवियर कॉन्स्टिपेशन पोस्ट ऑपरेटिवली रहती है। सो वी प्रीफर व्हाट रूट? पेरिनियल रूट, राइट, एंड पेरिनियल अप्रोच इज मोस्ट कॉमन बाय द वे। उसी वजह से
कि पेरिनियल अप्रोच का ये रहता है कि बेटा सेक्सुअल डिस्फंक्शन नहीं होता और बाद में कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। सो पेरिनियल अप्रोच इंक्लूड 3 डिफरेंट मेथड्स। वन इज द डेलॉर्म्स ऑपरेशन, one is Thiersch operation and Altimier's operation. Just listen to me carefully, I'll master you in this particular part. Out of all these three, which one is preferred? Delorme's operation is preferred. इसमें क्या करते हैं बेटा, एक्सिजन ऑफ द रेक्टल मिकोजा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। दिस इज योर एनस, राइट, एंड दिस इज द प्रोलैप्स्ड रेक्टम। और इसकी वॉल में आपको पता है अंदर अंदर क्या होगा, मिकोजा, और उसके बाहर क्या होगा, सब मिकोजा, और उसके बाहर क्या होगा, मसल होगा। सबसे पहला काम क्या करना है डेलॉर्म्स ऑपरेशन के अंदर, कि इस मिकोजा को रिजेक्ट करना है, चारों ओर से इसको काट देना है। एक्सिजन ऑफ द रेक्टल मिकोजा, मसल को काटोगे पीछे क्या आएगा, सब मिकोजा भी हटा दी, पीछे क्या बचेगा, मसल बचेगा। तो मसल को आपने करना है फोल्ड करके उसको सूचर्स लगा देने हैं, फोल्ड करके उसको सूचर्स लगाते हैं। अब मसल इज प्लाइकेटेड मीन्स फोल्डेड बाय इंटरप्टेड सूचर्स। अब देखो ना बेटा, आपने मिकोजा सब मिकोजा हटा दी, सिर्फ मसल बच गया। अब मसल को आपने फोल्ड किया, फोल्ड करके छोड़ दोगे तो फिर गिर जाएगा मसल। ये फोल्ड किया आपने और फोल्ड करके छोड़ दोगे तो फिर गिर जाएगा ना। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको फोल्ड करते हैं और ऊपर से सुचरिंग कर देते हैं। जब आपने मिकोजा सब मिकोजा हटा दी, बाकी बचा आपका मसल। इसको पेपर पे समझा दूं अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो। चलें जी, यहाँ पे समझा देते हैं। दिस इज द एनस, राइट, और ये रहा आपका प्रोलैप्स, जिसकी 3 वॉल्स है, मिकोजा है, सब मिकोजा है, और बाहर मसल लेयर है। आपने करना कुछ यूँ है कि मिकोजा सब मिकोजा उड़ानी है ताकि बच जाए पीछे सिर्फ मसल लेयर। ठीक है, मसल लेयर बच गई, मिकोजा सब मिकोजा उड़ गया। ये क्या है, एनस है। यहाँ से हो रहा है प्रोलैप्स। ज़ाहिर इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली समझाने के लिए। वे आर लेफ्ट विद द मसल। अब इस मसल को आप करोगे फोल्ड इस तरीके से, और अब इसको छोड़ दोगे तो फिर गिर जाएगा ना। तो क्या करते हो, इसमें सूचरिंग कर देते हो। सूचर करने से ये ऐसे फोल्डेड ही रहते हैं और ये स्ट्रेच हो जाता है ऊपर बआसानी। एक चीज़ नीचे लटक रही है, उसको आपने फोल्ड कर दिया तो ऊपर चली जाएगी, जाहिर सी बात है। और इसको सूचर भी कर दिया ताकि रिलीज ना हो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल डेलॉर्म्स ऑपरेशन। ठीक है, एंड दिस इज प्रीफर्ड ऑप्शन, दिस इज प्रीफर्ड ऑप्शन। हम पढ़ रहे हैं पेरिनियल अप्रोच, और पेरिनियल अप्रोच के अंदर एब्डोमिनल अप्रोच नहीं पढ़ रहे, पेरिनियल अप्रोच पढ़ रहे हैं। पेरिनियल अप्रोच में 3 पर्टिकुलर प्रोसीजर्स हैं। वी वर डिस्कसिंग द डेलॉर्म्स ऑपरेशन। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ कम्स द थियर्श ऑपरेशन। थियर्श ऑपरेशन इज कम्प्लीटली ऑब्सोलेट नाउ, लेकिन पहले करते थे। इसमें क्या करते हैं बेटा, इंसर्शन ऑफ द आइदर नायलॉन सूचर और स्टील वायर अराउंड द एनल कैनाल बिफोर द प्रोलैप्स, आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द प्रोलैप्स। एक्चुअली आप बेटा क्या करते हो, लेट्स सपोज दिस इज योर या एनस एंड दिस इज द रेक्टम ट्राइंग टू कम डाउन, ट्राइंग टू प्रोलैप्स आउट। आपने क्या कर दिया, एनस के अराउंड स्टील वायर, जैसे बेल्ट होता है ना, बेल्ट की तरह आपने इसके अराउंड, एनएस के अराउंड बांध दिया स्टील वायर को या नायलॉन स्विचर को। अब ये नीचे आ ही नहीं सकता। ये पहले ज़माने में इस्तेमाल होता था, अब नहीं यूज़ होता। इसको हम क्या कहते हैं, थियर्श प्रोसीजर। ठीक है, एक और पेरिनियल अप्रोच है एल्टीमियर्स प्रोसीजर। ये तो बिल्कुल मामला ही आसान है, पूरा रेक्टम भी काट दो, पूरा सिग्मॉइड कॉलोन भी काट दो। जो ऊपर कॉलोन बच गया डिसेंडिंग कॉलोन और एनस बच गया, कोलो एनल एनास्टोमोसिस कर दो। ठीक है, नाउ लेट्स रीकैप द पेरिनियल अप्रोच। हमारे पास फुल थिकनेस प्रोलैप्स के इलाज में, फुल थिकनेस प्रोलैप्स को हम और क्या कहते हैं, प्रोसीडेंशिया भी कहते हैं। ठीक है जी, प्रोसीडेंशिया। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक पेरिनियल अप्रोच रहती है और एक हमारे पास एब्डोमिनल अप्रोच रहती है। एब्डोमिनल अप्रोच ज़्यादा कॉमन है, पेरिनियल ज़्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, लेकिन इसमें रिकरेंसेस ज़्यादा होते हैं। पेरिनियल अप्रोच में हमारे पास 3 प्रोसीजर्स आ जाते हैं, डेलॉर्म्स, राइट, और क्या, थियर्श और
एल्टीमियर में क्या कर रहे थे, सिग्मॉइड कॉलोन और रेक्टम को रिजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और ऊपर जो डिसेंडिंग कॉलोन बच गया था उसको एनस के साथ मिला रहे थे, कोलो एनल एनास्टमोसिस, ठीक है। डिलॉर्म में क्या कर रहे थे, डिलॉर्म में यू रिमेंबर क्या कर रहे थे बेटा, सबसे पहले मिकोजा सब मिकोजा को रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट करने के बाद मसल को प्लाइकेट किया और सुचर लगा दिया, फोल्ड करके प्लाइकेट करके सुचर लगा दिया। अब ऊपर चला गया, नीचे आ ही नहीं सकता, ठीक है। थियर्श में क्या किया बेटा, दिस इज ऑब्सोलेट नाउअडेज, क्या किया था, अराउंड एनस बेल्ट बांध दिया था, स्टील वायर का या फिर नायलॉन का, ठीक है, ताकि प्रोलैप्स ना हो सके, नीचे ना आ सके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बेटा, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आफ्टर दिस कम्स द एब्डोमिनल अप्रोच। एब्डोमिनल अप्रोच में आता है वेल्स ऑपरेशन। वेल्स ऑपरेशन में क्या करते हैं, एब्डोमेन में इंसिजन देते हैं, एब्डोमेन से जाते हैं, रेक्टम को फिक्स कर देते हैं पीछे सेक्रम के साथ ताकि वो नीचे गिरे ही ना। रेक्टम को फिक्स करते हैं सेक्रम के साथ विद द हेल्प ऑफ शीट ऑफ पॉलीप्रपाइलिन मेश इस्तेमाल करके रेक्टम को पीछे सेक्रम के साथ फिक्स करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक वेल्स ऑपरेशन हो गई। नंबर 2 इज रिप्स्टीन ऑपरेशन। रिप्स्टीन ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज ट्रांस एब्डोमिनल रेक्टोपेक्सी। इसमें क्या करते हैं, रेक्टम को फिक्स करते हैं सेक्रम के साथ यूजिंग पॉलीप्रपाइलिन मेश, नो, देन व्हाट, टेफ्लॉन सिलिंग। इन केस ऑफ गोल्डबर्ग्स ऑपरेशन हम रेक्टम को फिक्स करते हैं सेक्रम के साथ यूजिंग टेफ्लॉन सिलिंग। देन व्हाट द हेल इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्स्टीन एंड द गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग में हम साथ साथ सिग्मॉइड कोलोन भी रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है एनास्टोमोसिस कर देंगे लेकिन सिग्मॉइड कोलोन भी रिजेक्ट करते हैं। In case of Ripstein operation, there is a high risk of constipation. In Goldberg, there is reduced risk of constipation. I hope you are familiar with the perineal approach. क्या नाम थे तीन, Delorme's operation. What else? Delorme के अलावा क्या है बेटा, Thiersch operation and Altimer operation. If you really want to memorize this, just type these पर्टिकुलर प्रोसीजर्स इन द कमेंट्स डाउन, हयात याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलोगे ये नाम, ठीक है जी। चलो एब्डोमिनल अप्रोच में वेल्स ऑपरेशन, वेल्स के अलावा रिप्स्टीन, उसके अलावा गोल्डबर्ग, ठीक है। इसमें हम सेक्रम को सेक्रम के साथ पीछे फिक्स कर रहे थे यूजिंग पॉलीप्रपाइलिन मेश। इसमें हम रेक्टम को पीछे सेक्रम के साथ फिक्स कर रहे थे यूजिंग टेफ्लॉन मेश। इसमें भी हम टेफ्लॉन मेश यूज़ करते हैं, गोल्डबर्ग में भी, लेकिन इसमें गोल्डबर्ग में कॉन्स्टिपेशन का रिस्क कम होता है, ठीक है, और रिप्स्टीन के अंदर कॉन्स्टिपेशन का रिस्क ज़्यादा रहता है। सो दिस इज द एब्डोमिनल अप्रोच। आई होप you are clear with this. Now beta, this is all about the rectal prolapse. If you really want to memorize all these names, in case of the perineal approach, which is most common, including Delorme's, Thiersch and Altimer, abdominal approach mein Wells, Ripstein and Goldberg. Do mention all these names in comment section. I guarantee you are literally never going to forget. But that's about the rectal prolapse beta. That's it. If you have any question, you can ask me anytime, anywhere. Thank you so much. Class dismissed.